Good evening, everyone. I hope I'm audible and visible. Thank you so much for participation here, for joining on a seminar, What to Career After 12th. Today, most importantly, we will be dealing with the career which actually required nowadays. We will be talking about the general orthodox careers, which are probably you may find very common, but may not be that effective as per present condition. The old orthodox career, why the present careers are very important, and how these career options can be useful for your future life. That we will try and cover. Undoubtedly, this is a series of seminar. We had started with the seminar on this Wednesday when we conducted a session on how to read newspaper. Now this is a session, second session after career. Then we will be planning a session on everything like as career specific, like specifically for law, then management and hotel management. There will be people who are expert from the specific field will be joining. So in today's session, I will be being a director, will be covering the crisp of almost all the basic careers, which is very common in all. Okay. So undoubtedly, why do we say this tree of careers are required? This question need to be addressed today. Okay. The flow of session will be like I will be discussing first. Meanwhile, if you have any query, you can put forward your queries in chat box. You can ask me. And parallelly, at the end, I'll be giving you a window of question and answer where you can ask your queries. Undoubtedly, questions, all the questions which is relevant to today's career point of view, can be discussed, analyzed. I'm not sharing the paper pattern today. I'm not going to share today the detailed list of careers because that will be captured in separately. We will conduct every Sunday, almost every Sunday from now onwards. There will be a series of seminar will be there, and every week the seminar will be specifically. So there you can be like you can discuss those queries. So guys, like let us start a brief introduction about us. We are from Vikalp Education Team, an organization which was made for the purpose of developing students in terms of aptitude, preparing candidates for an aptitude. So you can say Vikalp Education is a organization which prepare you for all the entrance exams which requires an aptitude. So aptitude basically means quantitative reasoning and English section that in detail I will be discussing. So exams related to after 12, there are multiple exams nowadays is requiring aptitude, basic aptitude. Then after graduation also there are exams like CAT and government exams. And then companies, then there are company specific preparation also that we prepare. So we have a basic three organization. Vikalp Education is a core organization which will be after graduation. And Vikalp Academy, today that the seminar is being conducted under the umbrella of Vikalp Academy, which is basically for after 12th. And then there's an organization called Vikalp Training for college and campus preparation itself. So we started in 2013, and the rest of the information is pretty easily available in Google. I myself is Rishi Chaurasi, a founder director, having around 15 years of experience. I'm a passionate aptitude trainer. I started my career with Career Launcher in way back in 2005. Then I shifted to 2000. In 2007, I shifted to Mumbai. There I joined Career Launcher Vashi. Then shifted to Time Mumbai. So 2008 to 13, I was with Time. Then 2013 mid, you can say 2013 in the end of the year, we have started with Vikalp. And then we started with the classroom training. In 2017, we have started with Vikalp Academy for after 12th. Thereafter, we have delivered around 3 batches successfully for after graduations. After 12th. So this is basic thing, and rest of the things I will not going to share. This session is not made for publicizing us. This is I think sufficient. If in detail you require, we are available in social media wherever you want to find. You can find it in the name of Vikalp Education. There you will get all the details. Rest of the things you can call ma'am, Shweta ma'am, and there you can discuss. Okay, so let us begin with the session where I'm starting with calling you people as Generation Z. So you might be aware about this concept, which is being recently published.
and those parents who are watching, they need to also be careful about what I am trying to discuss here. Why we need a career option as per the generation Z? We don't, and why don't we don't only rely on the career option which is primarily was there in generation X or generation Y? So the generations you can see is, it's like grandfather, great grandfather, and then father, and then you, my generation, I myself will be considered in generation Y. But जो भी आप लोग सेमिनार्स में बैठे हैं, आज वेबिनार में हैं, you will be considered as Generation Z. So Generation Z is a bit different. You need to understand this Generation Z is very energetic, knowledgeable, interactive in terms of technology. They love technology. They are very impatient also, and simultaneously they need career option which can give them our immediate result. So we need to understand that we need to choose our career according to the requirement now. तो जो पहले जनरेशंस में करियर ऑप्शंस हुआ करते थे, वो करियर ऑप्शंस को हम कहीं ना कहीं वी नीड टू कम अप विद एंड नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोस करियर ऑप्शंस मे नॉट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर नाउ जो जनरेशन बच्चे आ रहे हैं. इसलिए यू कैन सी a huge mismatch we are seeing, because why I'm saying in confident, because I started my career teaching engineering candidates. I started my career teaching the candidates who have done their graduation. So I am seeing that those candidates are struggling today because there's a huge mismatch in the generation, because they are not very very interested. So somehow they have realized that कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट का वर्क नहीं है. आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहता है. आज का जनरेशन मोर टूवर्ड्स इंक्लाइन है नए 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 इनोवेशंस की तरफ. हम लोग जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स करियर उनको प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल ऑप्शन हो गया या टिपिकल सीए जो ऑप्शन होता था, सीए सीएस, इज नाउ वेरी स्पेसिफिक करियर and they have their own challenges. So we need to think about some new challenges, new generations career option. That is why this seminar is very very crucial. Till end you should remember, till end आपको ये सुनना है and try करना है कि whatever the things that I am trying to discuss here, आप उसमें से पॉइंट आउट निकाल सकते हैं. ठीक है, एक स्टडी है, ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ. अनडाउटेडली दिस स्टडी डजंट रिक्वायर टू बी डिस्कस्ड. जस्ट वांटेड टू पुट फॉरवर्ड दैट ई जनरेशन, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन एंड why you called as generation Z. तो ये मैंने बताया. McKinsey is a huge big company. They have come up with this criteria, ideological explanation of about the different generation. So those who are parents, they need to think. We cannot always focus on generation X and generation Y for dealing with generation Z generation. हमको उनके हिसाब से अपने career options को देना होगा, right? तो अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अपने जनरेशन जी में कि क्या करना है, कैसे करना है. उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है. we do conduct a psychometric test. In fact, we have a tie-up with different types of modulars or psychometric analysis test. This way you will be able to come up with the exact understanding that what type of career that in future you can plan it. I will not go in detail. This is something which can be discussed in personal. I just wanted to tell you that there is an option that you have. If you are confused, like I want to select for what type of career option, then you can go with this type of test. We also can help you in future. Now, some important points in recently, specifically after pandemic, we need to understand that these career options जो मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, it's used to be very niche. Niche means बहुत limited होते थे, बहुत specific होते थे. So now these career options are becoming very very broad. Okay? Still undoubtedly NEET का एग्जाम देने वालों की संख्या more than a million है. मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग NEET देते हैं. Almost 0.6 million, लगभग 600,000 कैंडिडेट्स से ज्यादा लोग JEE का एग्जाम देते हैं. So इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर मेडिसिन में और इंजीनियरिंग में, CACS में भी काफी नंबर है. बट स्टिल आई वांटेड टू से nowadays कॉलेजेस जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, they are now involving themselves to provide some professional courses. तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज अब हमारे इन कॉलेजेस में भी आ रहे हैं, जिसका मतलब सिंपल है कि these colleges are not realizing that टॉप मोस्ट जो कोर्सेज हैं वो अब हमें
बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी लेना पड़ेगा. तो लाइक फॉर एग्जांपल डिड यू नो वाला जो सेक्शन है, there are total 23 law schools in our country. If you are thinking about a career in law, 23 law schools, NLUs we say, okay? But surprisingly, we have surprised recently IIM Rohtak, IIMs as Indian Institute of Management. तो IIMs क्या किसके लिए जाने जाते हैं? Management के लिए. So surprisingly, IIMs have started with their legal program this year. So this is something which we need to say this. All big institute wanted to come enter into this. Another did you know wala section, if you can see, usually BBA program or a graduation program is not a part of IIMs. Okay? In 2016, the surprisingly IIM Indore has initiated and come up with the program called IPM, Integrated Program. Today, you will surprised to know this. 5 IIMs have started. Total 5 IIMs have started with the IPM program. Initially, there was IIM Indore, then followed by Rohtak. Rohtak के बाद अब 3 IIMs और जुड़ गए इस साल से. So those who are planning for BBA and management career, really good news. Initially, IIMs actually बहुत कम limited seat होता था, इसलिए भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं होते थे. नाउ अब हमारे पास 5 IIMs है एंड इट्स प्योर प्रोबेबिलिटी की पूरा प्रोबेबिलिटी है कि IIM Bangalore will also going to start with their UG program. So what does it means? UG program अगर IIM start कर रहे हैं, so they realize this thing that when the time the candidate is coming to us, probably he has done his engineering, probably he has done his medical, probably he has done his graduation in general specialization. So till the time वो 3, 4, 5 years में बच्चे का जो involvement development किस तरीके से चाहिए वो है. इसीलिए now IIMs wanted to enter into UG program. They wanted to train candidates just like they got trained in their schools. So now जो graduation वाला जो portion है ना years, वो कहीं ना कहीं involve खत्म करना चाहते हैं IIMs. And trust me, अगर IIM Bangalore involve हुआ, total 20 IIMs हैं और there are topmost institute in our country. अगर ये सब involve हो गए, so you will remember this. Remember मतलब note करिएगा ये बात को कि ये career option after graduation will become really dynamic. मतलब it will compete with IIT. It will definitely going to compete with CACS. It will be a really good career option. Now, surprisingly, second, did you know section? We were also shocked. Nalsar, Hyderabad is the second best law school. You can see in the second section. Nalsar, Hyderabad is the second best B school, has started with their management program. So now, ऐसा लगता है कि they are in competition in between them. So IIMs are starting with law program, and now NLUs are starting with the management. But one thing is short, students जो फ्यूचर में जो लर्नर्स हैं, जो फ्यूचर में जो आने वाले समय पे एग्जाम्स अपीयर करने वाले हैं, दे आर द विनर्स. बिकॉज पहले क्या होता था, हमारे पास ऑप्शन है क्या, ग्रेजुएशन ही करो, इंजीनियरिंग नहीं किया, मेडिकल नहीं किया, सीए नहीं किया, तो चलो ग्रेजुएशन ही करो. आज यू हैव ऑप्शन टू एंटर इनटू दीस कॉलेजेस. दिस इज समथिंग career options we need to think about. This is generation Z career options. These career options are dynamic. These career options are actually prepared as per the need of the world. Today, the world is dealing with data. Now, we are in Industrial Revolution 4.0. 4.0 is far ahead than 3.0. And it has come very early. So according to the 4.0 generation, the entire world is shifted to data science, data management, and something like that. If you will still work on the previous old orthodox engineering subjects like mechanical and all, probably you may not get success in future. In medical, undoubtedly we need, undoubtedly, but the number of seats, the kind of medical is available, we need to really think about it. CACS, again, the problem remains the same. The number of qualification after the CACS is tough. So this career option in one side provides you the dynamic career. Simultaneously, it is easy to enter as compared to other career options. अगर आपने इंजीनियरिंग IIT और NIT से नहीं किया तो वो वेस्ट है. कुछ ही नॉन IITs and NITs हैं वो अच्छे हैं. मेडिसिन भी अगर आपने कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से नहीं किया तो वो अच्छा नहीं है. CACS में भी अगर आप देखेंगे आज अगर आपका रैंक नहीं है तो डिफिकल्ट है. बट मैनेजमेंट में, लॉ में
होटल मैनेजमेंट, ये करियर डायनामिक है। ये आपको मेंटली प्रिपेयर कराते हैं, आपको पढ़ाकू नहीं बनाते। ये आपको आपके दिमाग में, आपके अंदर वो पैसे कमाने का, अर्न करने का जो एबिलिटी है वो आपके अंदर डेवलप करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स विल बिकम मोर और मोर लीनियंट रादर देन बहुत स्ट्रिंजेंट, जिस तरीके से प्रीवियस करियर ऑप्शंस हुआ करते थे। तो आप देखेंगे पापा का करियर बहुत फिक्स रहा है, एक सिस्टमैटिक चैनल्स में रहा है। आज आने वाली जनरेशन को आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। करियर नीड टू बी डायनेमिक, आप चेंज करते रहेंगे। आज नई जनरेशन को बोलो कि मैं सरकारी नौकरी देता हूँ आपको, जनरेशन जी को कोई नहीं लेना चाहेगा। Nobody, hardly anyone will say, yes, I really need a job, government job. Everybody say, I want freedom. I want that influence in my life कि मैं आगे अपने हिसाब से लाइफ को मोल्ड कर सकूं। टुडे आप देखेंगे बच्चे इतने डायनेमिक है कि वो एक साथ 3-4 करियर अपने साथ डील करते हैं। बट मोर और लेस नए करियर के हिसाब से हमें अपने आप को प्लान करना है, प्रिपेयर करना है। दिस इज व्हाट अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये करियर चॉइसेस है, मैंने कुछ आपको सरप्राइजिंग इफेक्ट बताए। आफ्टर अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो अभी तक मेजर आईएम्स ऑलरेडी आ चुके होते थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, 12th के बाद वाले करियर्स के लिए। ठीक है, बट ठीक है, इन स्लोली इट इज इन फेज मोड। 10th के बाद जो वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी बड़ा लर्निंग मिल रहा है। 11th के बाद के लिए भी है, 12th में भी अगर आप है तो आपके पास स्टिल अभी अभी 5 आईएम्स के ऑप्शंस है। एनएलयूज के लिए भी अगर आप देखेंगे ऑप्शंस ब्रॉड हो गए हैं, और उसमें भी अगर आप देखेंगे लॉ करने के लिए काफी काफी ब्रॉड ऑप्शंस क्रिएट हो गए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द करियर 1 फर्स्ट, विल गो इन वेरी ब्रीफ। First of all, I'll go with management career in management after BBA or BA or probably जो आपका बीकॉम ऑनर्स होता है, इसके बाद यू विल बी परसुइंग विद मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट करियर क्यों इतना डायनेमिक है? बिकॉज दिस इज वन करियर ऑप्शन, ट्रस्ट मी, दिस इज वन करियर ऑप्शन विच हैव टू major possibilities, major positive points. There are major 2 points. I'm also a management graduate. That is why I'm saying with full confidence. First positive point is this is a career option which is ever changing. This career option changes according to the need. In engineering and other career options, you may not find changes in a variant. काफी रिक्रूटमेंट आप चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं चाहेंगे। बट इन मैनेजमेंट यू विल फाइंड इट इज डायनेमिक। ठीक है, तो इसका क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉप आईएम्स हैं वो मैनेजमेंट में जनरल डिग्री प्रोवाइड करते थे, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट डेटा साइंस, व्हेनेवर आई से डेटा, आपको समझना पड़ेगा कि हम सभी लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको डेटा बोला जाता है। तो ये डेटा को मैनेज करने का एक आईएम्स ने अपने अलग अलग तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो व्हाई these programs are required? Because now बहुत सारे बच्चे इंक्लाइंड हो रहे हैं इसकी तरफ। नाउ डेटा साइंस और डेटा मैनेजमेंट एक करियर ऑप्शन के तौर पे मैनेजमेंट पे देखने को मिलता है। तो दिस इज द करियर, द फर्स्ट रीजन यू शुड चूज मैनेजमेंट एज अ करियर, बिकॉज इट इज वेरी डायनामिक। सेकेंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली वी आर वर्किंग हार्ड। मैं आप सभी लोग वर्क करते हैं टू अर्न मनी। तो अल्टीमेटली किसी भी करियर ऑप्शन को आप डिफाइन करेंगे उसके प्लेसमेंट से। आई एम अश्योरिंग यू, मैनेजमेंट में जो करियर में के बाद जो प्लेसमेंट्स हैं, जो आपके प्रोफाइल्स हैं, जो पैकेजेस हैं, वो बाकी सारे करियर ऑप्शंस पे आप जनरलाइज कीजिएगा। हाँ, स्पेसिफिक मत देखिएगा कि मेरे किसी कलीग को आईआईटी पवई में, आईआईटी मुंबई में ये पैकेज मिला, वो एक स्पेसिफिक हो सकता है। जनरलाइज इंजीनियरिंग करियर ऑप्शन देखिए, मैनेजमेंट चेक करिए, और भी करियर ऑप्शन देखिए, यू विल फाइंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आर ऑन एन एवरेज गेटिंग अ बेटर प्लेसमेंट, better packages, good company, good profile as compared to any other career option. So that is why management as a career is very important. ये आपको ये 2 crucial point आपको बहुत तक याद रखना है। मैंने ऑलरेडी बताया कि टॉप कॉलेजेस में IIM इंदौर, इट्स अ ड्रीम कॉलेज एट प्रेजेंट। इफ यू आर इन यूजी, IIM इंदौर अगर आपको मिलता है, एक बार अगर आपने कैंपस भी देख लिया ना, गूगल पे आज सर्च करिएगा, अच्छी आपकी इच्छा हो जाएगी कि यार ये कॉलेज में मुझे पढ़ना है। A fantastic career, fantastic campus, huge but infrastructure जरूरी है क्या सर? No, of course not. Infrastructure is just a मतलब representation, that's it. से कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप IIM इंदौर का पूरा वो देखेंगे,
हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया था लास्ट ईयर, वो फिर से होगा सेमिनार, मिस अनुषा सोनी का. She is actually pursuing her career, her IPM. She was in 5th year, but I think she now passed out हो चुकी होंगी. तो she was in IIM Indore last year. अभी passed out होंगी. She has conducted that seminar. She had delivered that seminar. Tremendous. What the way she has expressed, I really impressed. मैंने कभी इतनी कम एज में किसी बच्चे को इतना clarity of thoughts मैंने बहुत ही rarest point पे देखा है. She was brilliant. So you can just imagine a person who's learning in IIM Indore, the age, passing out age is 22 years, 23 years, and you are getting a package. चलिए package तो वहाँ अच्छा मिलना ही है, but the IQ level, the understanding is tremendous, बहुत बढ़िया. तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है इन मैनेजमेंट कॉलेजेस में. IIM Indore, fabulous choice, amazing. रोहतक, बोध गया, रांची, जम्मू. Somebody was asking me, sir, क्या इनमें जाना चाहिए? इनको बेबी IIMs बोला जाता है, इनको थर्ड लाइन IIMs बोला जाता है. IIM Indore is in first lane, ठीक है, बट बाकी जो है वो थर्ड लेन पे आते हैं, बीच के भी कुछ लेन्स वाले हैं. तो क्या ये कॉलेजेस में जाना चाहिए? आई वुड सजेस्ट ब्रांड रियली मैटर्स. अगर आपने IIM भर बोला ना किसी को, सामने वाला एक बार में के लिए पॉज ले लेगा आपके सामने. आपने बोला मैंने IIM से ये किया है, that's it. It's like IITs. So it's a fantastic choice. Other than that, if you are unfortunately अगर आपकी नहीं प्रिपरेशन के तौर पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा. 20,000 कैंडिडेट जनरली अपीयर्स फॉर IIM Indore एग्जाम. इस साल बढ़ेगा. तो अगर हर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता तो उसके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. So Symbiosis has started in Nagpur also. So this has become a really good opportunity to us. Nagpur as well as other cities में भी है. तो Symbiosis is a national brand. You know, मैंने अपना करियर शुरू किया था 2003 से, जब मैं MBA कॉलेजेस की तरफ सर्च करता था, that point of time से ही Symbiosis was very recognized. That time they used to have very limited number of colleges, seats भी limited होती थी. Today उनका एक प्रकार से empire है, मान के चलिए. Symbiosis is a really good option. Nagpur is also a good option. Parents, those who are not willing to send their kid to different cities, तो Symbiosis Nagpur is tremendous, really good option. Narsee Monjay is in Mumbai का सबसे अच्छा option. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए. Narsee Monjay is like Symbiosis only. अभी Symbiosis ने अपने expansion ज्यादा कर लिया. Otherwise, Narsee Monjay was an even bigger brand than Symbiosis. But now I think Symbiosis has over age or Narsee Monjay. ठीक है, more or less both the colleges are from Maharashtra. Saint Xavier, I am talking about Mumbai, and these are the three. मैंने अभी बहुत से colleges नहीं लिखे. काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. दिल्ली में आपको जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू ऑनर्स के बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज, BBA का कोर्सेज वहां पे मिलता है. और इसके अलावा आप बेंगलोर की तरफ, साउथ की तरफ जाना चाहते हैं तो प्राइस तो नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है जहां आपको कोर्सेज मिलेंगे. सो नाउ इन मैनेजमेंट यू माइट हैव टू पॉसिबल ऑप्शन. वन विल बी ज्वाइनिंग अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. मतलब यू आर क्लियर कि भाई मुझे इधर से MBA करके निकलना, तो IIM Indore 3 साल का आपको BA का डिग्री देगा. BBA नहीं, BA इज लाइक वहां पे BBA के जैसे ही मान के चलिए. इन डिटेल में आपको अनुषा सोनी का सेमिनार सुनेंगे तो शी हैज एक्सप्लेन्ड इट वंडरफुली व्हाट 3 years जनरली दे टीच. तो BA फॉलोड बाय MBA डिग्री, PGP डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री. और एल्स दूसरा ऑप्शन है, यू कैन गो विद Symbiosis और नरसी मुंडे कॉलेजेस वेयर दे ओनली प्रोवाइड यू द ग्रेजुएशन डिग्री. अगर आपको मास्टर्स करना है तो इन कॉलेजेस के मास्टर्स भी है. तो Symbiosis का मास्टर्स का कॉलेज भी है MBA के लिए, नरसी मुंजे का मास्टर्स कॉलेज भी है. Why both options can be better choice? Try and understand. IIM Indore को छोड़ के नो प्रीमियम कॉलेज, रोहतक बोध गया अभी इंक्लूड हो गया है, नो अदर प्रीमियम कॉलेजेस इन आवर कंट्री हैज दैट रेपुटेशन टू डू MBA विद देम. तो इसलिए अगर आपको IIM Indore, रोहतक बोध गया ये मिलता है, देन MBA करना प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन फ्रॉम देयर. बट अगर आपको ऐसा कोई कॉलेज जैसे नागपुर में अगर आप हैं तो रामदेव बाबा ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. वो कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो I would not suggest to go for a master's also, because
I think you may have a better option if you are planning now. In 11th, 12th, if you are planning, you surely should desire for or think for an IIMs. तो इसलिए symbiosis, Narsi Munje, why these options are really, really crucial? Because in 3 years, you will be learning multiple things. Mainly मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ. मैं हमने बच्चों को देखा है, मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है, इतने सारे बच्चों को हमने ट्रेन किया है, तो बहुत क्लोजली मैंने वॉच किया है. 2014-15 के बाद जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, अनफॉर्चुनेटली उनका IQ लेवल, उनका इंटेलिजेंस, उनका मेंटल लेवल इज नाउ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. दे आर वेरी वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ दैट. व्हाई? बिकॉज आफ्टर 12th they have joined some XYZ college which is probably just known for that. उसके बाद उनका क्या हो रहा है? बहुत डिफिकल्ट है. बट अब अगर आप सिम्बोसिस एंड अदर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, प्लान करते हैं, सो दैट कैन बी रियली रियली गुड इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ऑप्शन. तो सिम्बोसिस, नर्सी मुंजे, जेवियर्स will provide you that ability. वो 3 साल आपको काफी हद तक प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा. you will be in a position to like understand things much better than a normal graduation guy. इसलिए ये करियर ऑप्शन होने चाहिए. IPM, सेट, एनमेट, ऐसे वेरियस एग्जाम्स होते हैं इन करियर के लिए. तो आई थिंक करियर एंड मैनेजमेंट मैंने एक्सप्लेन किया क्यों रिक्वायर्ड है, वंडरफुली मैंने आपको बता दिया. डिटेल में अगर आपको कुछ क्वेरीज रहेगी आप नोट कर सकते हैं. यू कैन आस्क मी इन द लेटर स्टेज. इतने सारे ऑप्शंस हैं BBA में. लुक, मैं अभी फिर भी जम्मू एंड ये कॉलेजेस हमने ऐड नहीं किया है. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये आपके पास रहेगा. बट स्टिल आई थिंक इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन गूगल. मैं इस पे एक स्पेसिफिक सेमिनार करवाऊंगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम में. तो इसके पेपर पैटर्न के साथ साथ कट ऑफ, उसमें क्या क्या चीजें हैं, प्लेसमेंट, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दिस इज अबाउट BBA. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, IPM में जो 5 मेजर इंस्टीट्यूट है और छठवा जो नलसार है, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, 3-4 लास्ट 4 आर नीड. तो एक्चुअली दिस इज अ राइट टाइम टू एंटर इनटू दीस कॉलेजेस बिकॉज वेरी वेरी फ्यू कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड नाउ. तो सर अभी हम लोग पहले हम लोग जाएंगे तो गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं. ये IIMs है बेटा. आप मतलब ये कह लीजिए देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, IIMs, IIT और एम्स, ये 3 लोगों पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं. एम्स अगर अपने नागपुर का भी आपको मिलता है तो बोलिए आप जाना चाहेंगे? डेफिनेटली जाना चाहेंगे. तो यही बात इनके लिए भी. भले ये रांची आपको मालूम है झारखंड में आता है, बोधगया बिहार में आता है, जम्मू जाने में थोड़ा और टेंशन आएगा, और तक हरियाणा में आता है. ये शहर सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, बट ट्रस्ट मी, डजंट मैटर एक्चुअली. दीज कॉलेजेस आर ऑल कॉलेजेस, जितने भी 6 की 6 लिखे वो सब क्या है? रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स. आप एक बार कैंपस के अंदर गए, आ ही नहीं सकते बाहर. डजंट मैटर. ठीक है. डोंट गेट अफ्रेड अबाउट द सिटीज. सिटीज आर आल्सो अच्छी हैं, बट मेन है ब्रांड वहां का. दीज आर द 6 रियली गुड ऑप्शंस अवेलेबल टू अस. अब करियर में आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये जरूरी है कि मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी करियर स्किल्स की जरूरत है. एक बार अगर आप गो थ्रू करेंगे, आई जस्ट यू कैन सी मेजरली आपको करियर ऑप्शंस में जो सबसे क्रूशियल स्किल्स होती हैं उसको हम लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं. हर को जो करियर होता है वो बेसिकली एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है. तो ये जो तीन बेसिक जो टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल, लॉजिकल एंड वर्बल, दिस इज वी कॉल्ड एज एप्टीट्यूड. तो ये स्किल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी मैं और 2-3 करियर्स आपको बताऊं, every single point of time you will find these skills are essential, very very essential. तो न्यूमेरिकल, लॉजिकल एंड वर्बल, ये आप इसके बिगर कोई भी करियर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकते. और अगर मैं आपको बोलूं, यही मैं आप पे एम्फेसाइज कर रहा था कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉर्मल, किसी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग, नॉर्मल कॉलेज से BCom, BBA या BCA, या नॉर्मल कॉलेज से कोई भी अगर आप ऐसा कोई डिग्री ले रहे हो, उन बच्चों में सबसे पहला यही चीज लैक करता है.
बहुत बेसिक लैक करता है। तो ये, बट अगर आप अच्छे कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं तो ये बेसिकली ये आपको पहले तो अगर अच्छे कॉलेजेस ज्वाइन करना है तो ये स्किल्स को आपको डेवलप करके प्रोसेस करके जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन ड्यूरेशन ऑफ द ग्रेजुएशन ऑल्सो और मैनेजमेंट ऑल्सो वो काफी इस पे वर्कआउट करते हैं। करंट अफेयर एक ऐसा चीज है जो ये बताता है कि आप आज के युग में, देखो आज का युग में है जो है, टुडेज जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको आप दोनों साइड में कंसिडर कर सकते हैं। वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, है ना, वो अपन बोलते हैं ना कि एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ नॉलेज जनरेशन, एवरीथिंग इज वेरी इजीली अवेलेबल, डायनामिक है, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव ये है कि जो इजीली अवेलेबल है वो जेन्युइन होगा, श्योर होगा, गलत नहीं होगा, ये बहुत कम हद तक आप कह पाएंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वहां लगी होती हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत हद तक गलत इंटरफेयर किया जाता है, आपके माइंड में एक प्रकार से एक प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। सो करंट अफेयर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग और उसको अंडरस्टैंड करना एक बहुत क्रूशल स्किल्स है। तो इसलिए जो हमारे जो आगे की तीन जो स्किल्स हैं, करंट अफेयर, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तीनों की तीनों होती हैं जब आप लगातार न्यूज़पेपर रीड करते हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, मैंने लास्ट वीक एक सेशन किया था न्यूज़पेपर का, उसमें इंपॉर्टेंस जो हमने बताया। तो न्यूज़पेपर आपको बेसिकली क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग के साथ साथ न्यूज को सेग्रीगेट करना और आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करना भी सिखाता है। तो ये बहुत बहुत क्रूशल थिंग है जो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि हम वीडियोस और यूट्यूब के थ्रू आजकल न्यूज़ेस देखते हैं और वहां से फिर अपना एक परसेप्शन क्रिएट होता है। और आप देखेंगे आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्शन फैला हुआ है, उसका रीजन ही यही। इस जनरेशन में को स्मार्ट अगर आप हो तो स्मार्ट बनकर रहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और वो स्मार्टनेस तभी है जब आप डिस्ट्रैक्शन अपने लाइफ में नहीं आने देते। ठीक है, ये स्किल्स पोजेस करना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी की थिंग, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट, व्हाट मतलब आपका रिटन एबिलिटी बहुत बहुत क्रूशल होता है। हर मैनेजमेंट एग्जाम में आपको रिटन एबिलिटी मिलेगा। एंड पर्सनल इंटरव्यू की स्किल्स भी इक्वली आपको जरूरी है। तो ये करियर स्किल्स अगर आप प्रोसेस करेंगे या ये डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो मैनेजमेंट एज अ करियर में आपके लिए काफी हद तक ये हेल्प करने वाला है। इसके बाद वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज लॉ। नाउ सरप्राइजिंगली जब से क्लैट स्टार्ट हुआ है, लॉ बेसिकली हम जनरली जाना जाता था एक काला कोट वाला आदमी तो केसेस फाइल कर रहा है, या आप जनरली सोचते थे कि जो लॉ करियर है वो केवल केवल मतलब प्रोमिनेंटली लिटिगेशन को लेकर ही, डिस्प्यूट को लेकर ही। नहीं, एनएलयूज जब से एंटर हुए, और एनएलयूज में भी सबसे ज्यादा पॉइंट मेरा ये मानना है कि जब से एनएलयूज ने क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करना चालू किया, तब से लॉ एज अ करियर हैज बिकम रियली रियली डायनामिक। आप सुनते रहे हैं कि बड़े बड़े केसेस में, अब जैसे हरीश साल्वे साहब, अभी आप देखेंगे हमारे नागपुर की लॉयर, इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली जज रिटायर हुए हैं सीजेआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो बोबड़े, ठीक है, तो नए जो रिटायर हुए हैं वो भी हमारे नागपुर से थे, तो नागपुर से ही है। हरीश साल्वे जी अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टारलाइट इंडस्ट्रीज का लड़ रहे हैं, उन्होंने भूषण का केस भी लगा था, और ऐसे बहुत सारे केसेस उन्होंने फाइट किया। तो ये लोग जब आप देखते हैं, ये इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, आप अभिषेक मनु सिंह भी ले लीजिए, या हमारे लॉ मिनिस्टर ले लीजिए मिस्टर रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम साहब, ये सब बड़े बड़े एमिनेंट लॉयर, कपिल सिब्बल। तो जब आप इनको देखते हैं, इन्होंने लॉ को डायमेंशन बिल्कुल बदल दिया। अब लिटिगेशन से ज्यादा बढ़कर चीजें बहुत ब्रॉडली बन गई, इनकी खुद की फॉर्म्स हैं, और ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लॉ केवल और केवल लिटिगेशन तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, लॉ अब बहुत ब्रॉड करियर हो गया है। और अब लॉ में एक सबसे बड़ा जो मिथ है कि भाई इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, आई कैन डायरेक्टली गो एंड ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, वो मिथ आपको यहाँ पर टूटता हुआ दिखेगा, क्योंकि हर लॉ के लिए, करियर के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, सो इतने सारे करियर्स हैं, लिटिगेशन, लॉ फर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप घर पे रह के काउंसिल कर सकते हैं,
अगर इनमें से कोई करियर नहीं मिला तो अगस्त में देखिए एलपीओ इज लीगल लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल जर्नलिस्ट, आप टीचर बन सकते हैं, जुडिशरी में जैसे आप जा सकते हैं। एनएलयू नागपुर हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ कोर्स इन जुडिशरी। अगर जज बनना है या आपको गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है या गवर्नमेंट लॉयर बनना है तो उसके लिए जुडिशरी वाले कोर्सेज में यू कैन गो। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो लॉ करियर कोर्सेज कर रहे हैं, डोंट थिंक लॉ एज जस्ट फॉर अ लिटिगेशन पर से, केवल डिस्प्यूट के लिए मत समझिए, इसका वास्ट करियर ऑप्शन है। इसको हम लोग हमेशा से बोलते रहे हैं, इट्स अ रिसेशन प्रूफ करियर। रीजन बीइंग, I still remember my sister-in-law is a lawyer. ठीक है? So when she was pregnant, that point of time she was earning. When she shifted to Kolkata from Mumbai, at point of time she was working from home. पैनिडेमिक के टाइम पे जब पूरे घर से काम कर रहे थे तो शी वॉज वर्किंग मतलब नॉट दैट लेवल पे, बट शी वॉज अर्निंग। सो दिस करियर इज कंप्लीटली रिसेशन प्रूफ। मतलब अगर आप अच्छे लॉयर बन गए तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग और अच्छी खासी अर्निंग आपको चलते रहेगी घर से भी। तो इस करियर के बाद अगर आपने एनालिस्ट से कर लिया, मेहनत करके अगर आपने कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिए, सो रेस्ट अश्योर रहिए, रेस्ट ऑफ द लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे बैठ के काउंसिल भी करेंगे, अपने आप आपको खुद ही क्लाइंट्स मिलने वाले। उसके अलावा लॉ में बड़े बड़े फर्म्स हैं, ठीक है? इतने बड़े बड़े फर्म से जब आप ज्वाइन करेंगे, उन फर्म्स में आपको जो पैकेजेस हैं वो भी सरप्राइजिंगली काफी हाई। एक स्टडी जो मैंने नहीं किया था, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक स्टडी हुआ अभी रिसेंटली, पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मेरे प्रीवियस डिस्कशन से होगा मैनेजमेंट से, बट वो स्टडी अगर आप देखेंगे जो टॉप आईआईटीएंस, मैं टॉप बोल रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में मैंने जनरलाइज किया था। सो टॉप आईआईटीएंस, टॉप मेडिकल प्रोफेशनल, टॉप आईएम गाइस एंड टॉप एनएलयू गाइस, इन सबका जब कंपैरिजन हुआ, सरप्राइजिंगली लास्ट 2-3 इयर्स में ये देखने को मिला कि टॉप एनएलयूज आर अर्निंग गुड पैकेजेस, गुड सैलरीज। मतलब लॉ मतलब ये नहीं है कि मेरे को प्रैक्टिस ही करना है, लॉ मतलब आई कैन वर्क विद कंपनीज आल्सो। माय वेरी क्लोज फ्रेंड इज वर्किंग इन कोल इंडिया in Nagpur. He is doing law, 3-year program. Now, why he is doing? Because he know there is a post in legal department. So every single PSU has a legal department. तो legal में आप वहां पे अपने आप को, तो इतने सारे vast possibilities हैं, you can imagine in law. मतलब मैं आपको गिनाते थक जाऊंगा, बट लॉ इतना बड़ा आज करियर ऑप्शन बन गया है कि बहुत बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक बड़ा मिथ जो आपको क्रैक करना पड़ेगा कि करियर ऑप्शंस हमारे पास केवल लॉ में जो करियर ऑप्शंस हैं वो सबसे इतने सारे जो मैंने बताए, ये कहाँ अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है। तो ये सब आप समझिए कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, मेरे ख्याल से लॉ कॉलेजेस होंगे, इतने सारे लॉ कॉलेजेस में आप हर लॉ कॉलेज में अगर जाएंगे तो इतने इतने स्मूथली जो मैंने बताया वो करियर नहीं मिलेगा। बट अगर आपने टॉप एनएलयूज, टॉप लॉ कॉलेजेस में अगर आपने एक्सरसाइज किया, श्योर हूं मैं, आपको जो मैं बता रहा हूं उससे अच्छा भी करियर ऑप्शन आपके सामने जुड़ सकता है। एनएलयूज एंड लॉ स्कूल्स are now becoming very very common prominent career nowadays. Unfortunately in smaller cities like Nagpur or other cities जहां पर उतना अवेयरनेस नहीं है, still people consider this as a career of a kala coat, ठीक है? बट दिस इज अ वेरी वेरी हाई पेइंग जॉब विथ रियली गुड रिटर्न एंड मतलब लाइफ लॉन्ग करियर के साथ आपको ये दे सकता है, ठीक है? इतने सारे एग्जाम्स है प्रोमिनेंट जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ मैंने दिखाए आपके सामने। क्लैट है, लॉ है, आईलेट है, स्लैट है, एलसेट है, सभी अपने अपने एग्जाम्स हैं। क्लैट इज अ प्रीमियम एग्जाम, जस्ट लाइक आई एम बीबीए के लिए आईपीएम इंदौर इज अ प्रीमियम, वैसे क्लैट इज फॉर लॉ। दिस एग्जाम इज फॉर 22 एनएलयूज, ठीक है? 23rd एनएलयू इज दिल्ली, जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है आईलेट। बाकी जितने भी हैं ये आप समझिए कि इट कम्स अंडर द क्लैट। दिस एग्जाम इज फॉर महाराष्ट्र लॉ कॉलेजेस, लॉ सीईटी, ठीक है? इसमें जीएलसी मुंबई एंड आईएलएस पुणे के तो अच्छे कॉलेजेस हैं। स्लैट once again Symbiosis आ गया। Symbiosis has come up with a really really good
ब्रांड। आई एम टेलिंग यू, सिम्बोसिस का नागपुर में लॉ कॉलेज भी है और बीबीए कॉलेज भी है, मैनेजमेंट भी है। तो उन्होंने ह्यूज कैंपस बनाया। आप तो नागपुर जाएंगे तो आपको नागपुर में पटोड़ा साइड पे ये कैंपस मिलेगा, अमेजिंग कैंपस। अगेन रेसिडेंशियल पे वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो सिम्बोसिस के लिए मुझे स्लाइड देना पड़ेगा। और भी है, पुणे में भी है उनका, पुणे मेन ब्रांच है, हैदराबाद है, नोएडा है। एलसेट, एलसेट इज फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। जो कॉलेज कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करते हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं एलसेट के अंदर आते हैं। जिंदाल करके कॉलेज है सोनीपत में, expensive, the most expensive college in our country, close to 50 lakh, half a crore rupees in 5 years you have to invest. मालूम है, बट फिर भी यहाँ पर जाने के लिए लोग इतनी ईगर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े लॉयर में आपको गिना रहा है, उन सब लॉयर्स के बच्चे या रिलेटिव्स यहाँ से पढ़ के हुए जाते हैं। तो दिस कॉलेज विल नॉट ओनली गिव यू प्लेसमेंट, बट जो लॉ में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो है कॉन्टेक्ट्स। योर आपका, आपके जो आप कितने लोगों से एक संपर्क में है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज। आपके रिलेशंस वो जिंदाल में मिलते हैं, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, जनरली वी डोंट रिकमेंड। इसके अलावा नरसिंह मुंजे का भी लॉ है, क्राइस्ट का भी लॉ है, तो बहुत सारे ऑप्शन है भाई। मतलब अपन थक जाएंगे करते हुए, बट वो करियर ऑप्शन अपने पास रहने वाले हैं। तो प्रोमिनेंटली ये ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा भी लॉ में कुछ करियर्स हैं जो इन 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 जब हम पूरा एक सेपरेट सेमिनार करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड। 22 एनएलयूज जो क्लैट के अंदर आते हैं। आईलेट के अंदर में अगर आप देखेंगे, आईलेट में आईलेट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एनएलयू दिल्ली। अभी रिसेंटली ये टॉक चालू है कि इनको मर्ज कर दिया जाए तो एक ही एग्जाम होगा। वैसे भी ये एग्जाम थोड़ा सा रेलिवेंट ही लगता है, बस उसका अपना वो है। आई एम रोहतक हैज स्टार्टेड विद एनएलयू प्रोग्राम। देन देयर आर सम गुड प्राइवेट कॉलेजेस लाइक सिम्बोसिस, निरमा इज अ गुड कॉलेज, नरसिंह मुंजे का भी है, ठीक है। एंड देन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी फीस काफी कम है, बट यहाँ पर वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है जो हमें एनएलयू में मिलता है। एनएलयू का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट्स अ रेसिडेंशियल। ऑल मेजर university colleges affiliated to government, and they are autonomous, whether it's in IIT or IIMs or medical or NLUs, all are residential. This residential thing is actually really important for a development person. वो आपको छोटी से लेके बड़ी सारी स्किल सिखाते हैं, इसलिए हमें ऐसे कॉलेजेस चूज करना चाहिए बीइंग स्टूडेंट। और अगर आप पेरेंट सुन रहे हैं तो वो करियर पे हमको जाना चाहिए जहां पे रेसिडेंशियल हो, तो बच्चा काफी कुछ लर्न करता है। डोंट पुट योर वर्ड, और आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप खुद के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं घर से बैठ के या मैं अपने शहर में ही करूँ। अगर आपको कॉन्स्टेंट नहीं है, आई वुड सीरियसली सजेस्ट टू गो फॉर अ कॉलेज विच इज हैविंग अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पैसों की कद्र से लेके, अर्न करने की एबिलिटी से लेके, आपको कैसे मैनेज करना है चीजों को लेके, ग्रुप में कैसे रहना है, इंडिविजुअली कैसे रहना है, सेपरेट, मतलब मैं गिनाते थकूंगा, इतनी सारी स्किल्स आपको हॉस्टल में रह के सीखने को मिलेगा। तो प्लीज ट्राई टू दोस कॉलेजेस फॉर जिनमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं। हाँ भाई, law exam is bit different as compared to the IIM exam. The reason is it highly emphasize on reading. आपको मैं सिंपल सजेशन दूंगा, either if you are not a good reader, start reading now today itself. रीडिंग में क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। और अगर आप रीड नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीड का मतलब है यहाँ पर वेरियस सोर्सेस को रीड करना। आप भूख होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा ग्रीड होना चाहिए नॉलेज का, ठीक है, कि जो भी आ रहा है आप उसको पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, देन यू विल बी अ रियली गुड लॉयर। बट अगर नहीं है तो सॉरी, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलूंगा, देन यू शुड शिफ्ट टू मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में उतना रीडिंग नहीं है, वहां आपका जनरल स्किल्स हैं, एप्टीट्यूड स्किल्स हैं, जहां पर आपको उतना एम्फेसाइज नहीं करना है रीडिंग पे। तो रीडिंग में आपको एक बात कंपलसरी है, जो आप लॉ एज अ करियर देख रहे हैं, 2 घंटे तो आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना। एंड अभी मैं बीच में आपको बताऊंगा कौन कौन से न्यूज़पेपर कैसे।
2 घंटे के अलावा आपको वेरियस अदर सोर्सेज में 1-1.5 घंटा और डिवोट कर लेना चाहिए। कम से कम 3 घंटा आप अपने लाइफ का निकालिए, दिन का निकालिए, जिसमें आप केवल रीडिंग पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें 2 घंटा केवल न्यूज़पेपर। तो आप उस लेवल पे पहुंचने के लिए मतलब केपेबल हो पाएंगे कि टॉप एनएलयूज में हम जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप छोटे कॉलेज से भी करेंगे, नागपुर में अंबेडकर कॉलेज, दो अंबेडकर कॉलेजेस, एक यूनिवर्सिटी का और एक दीक्षा भूमि में, वहां पे भी जाके आप करेंगे, यू विल फाइंड दिस थिंग। अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एक डिग्री लेके ही आ रहे हैं, उससे अच्छा तो बोलोगे कि भाई मेरे 5 साल लगाए, उससे तो 3 साल की मैं ग्रेजुएशन की डिग्री कर ले। तो रीडिंग स्किल्स वेरी इसेंशियल, अपने आप करंट अफेयर डेवलप होगा। अब लीगल रीजनिंग का स्किल्स मैंने यहां बोला है, तो लीगल रीजनिंग का स्किल्स ये नहीं है कि आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन की और पहले ही आपको लीगल आने लगे, बट स्टिल आप विजुअलाइज और एनालाइज कर सकते हैं। यू मस्ट नो कि भाई आर्टिकल, अगर हमने कोई स्पेसिफिक आर्टिकल अगर बदला है या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो लीगल रीजनिंग इज समथिंग, इट्स बेसिकली योर एबिलिटी टू रिलेट लीगल न्यूज़ व्हिच इज हैविंग अ लीगल इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपको उसका बेसिक, उसका अगर आपको नहीं पता है, या मतलब ये बोलिए कि उसका उसका स्टैटिक पार्ट नहीं पता है तो चलेगा शुरुआत में, स्लोली स्लोली तो वो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लीगल रिलेटेड न्यूज। अभी स्टारलाइट इंडस्ट्रीज का एक केस चालू है, एक जनरल एग्जाम्पल, वो हर नॉर्मल इंसान के लिए एक नॉर्मल ही है। अब स्टारलाइट इंडस्ट्रीज जो है वो विशाखापट्टनम में, उसको क्लोज कर दिए थे क्योंकि प्लांट में प्रॉब्लम चालू। नाउ दे हैव ऑफर्ड 1,000 टन डेली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट हमारे को चालू करने दो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चालू है। तो अब उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसका एक बैकग्राउंड है। तो ये लीगल रीजनिंग है बेसिकली, ये आपका एबिलिटी है कि थिंक कर रहे हैं कि भाई उसको अलाउ क्यों करना चाहिए, अलाउ क्यों नहीं करना चाहिए। एज अ लॉयर यही करने वाला, लॉजिकल स्किल्स, सोचना है, एबिलिटी टू थिंक। और वो कैसे डेवलप होगी, वो पहले नंबर से ही शुरू होगा। पहली चीज आपने पढ़ा, अपने आप बाकी चीजें होती चलेगी। एनालिटिकल थिंकिंग, स्मार्टली उसके बारे में सोचना, थिंक करना, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल ओरल कम्युनिकेशन और आपका राइटिंग स्किल्स, ये सब एज अ लॉयर आपको बहुत बहुत क्रूशल है। और न्यूमेरिकल देखिए कितना लेट आ रहा है, इसलिए क्लैट का एग्जाम आप देखोगे ना, उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज इज 10% और, ठीक है। बाकी जो है वो आपका प्योर रीडिंग, 90% इज रीडिंग, 10% इज न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन। तो आप अच्छे लॉयर है, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए भाई। कम्युनिकेशन मतलब बोथ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट और बड़े कोर्ट्स में जाके करना चाहते हैं क्लाइंट्स, तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपको एटलीस्ट अगर आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में अच्छा लॉयर बन के रहना चाहते हैं, तो आपका एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज रियली रियली गुड, वेदर इट इज इन मराठी और योर लोकल लैंग्वेज और हिंदी, डजेंट मैटर, रिक्वायर्स वेरी मच। कम्युनिकेशन डजेंट मीन इंग्लिश, हाँ, कम्युनिकेशन मीन्स योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कन्विंस। और लॉयर को करना क्या है, कन्विंस करना है। एक आखिरी बात यहाँ स्किल्स के लिए मैं बोलता हूँ, जो मैं काफी खुश हूँ, मैं बहुत प्राउडली इस बात को बोल रहा हूँ कि चलिए एनएलयूज ने ये बात रियलाइज की। हालांकि द वे दे हैव रियलाइज, जिस तरीके से ये 2020 बैच वालों के लिए हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि 2020 के पहले तक जो फ्लैट था, मतलब 2008 से 2019 तक का जो फ्लैट था, वो फ्लैट बेसिकली बेस था मेमोरी बेस पे। आपको लीगल याद करो, टेक्निकल चीजों को, नंबर्स को याद करो, फिर आप करंट अफेयर याद करो, उसमें हिस्ट्री आ रहा है, उसमें ज्योग्राफी आ रहा है। तो somehow now they realized in 2019 कि भाई ये सब बकवास है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। लॉयर को थोड़ी ना ये याद रखना है, लॉयर को के सामने तो बुक रखी है। लॉयर की एबिलिटी क्या है, उस XYZ केस जो पुराना था, उस केस को बेस बना के हमारे प्रेजेंट केस पे इस तरीके से मैं रिलेट कर पा। शाहबानो का जो केस था राजीव गांधी जी के टाइम पे, उसको बेस बना के सायरा बानो वाला केस आया 2017, और ये दोनों केस को बेस बना के 2019 में ट्रिपल तलाक का केस आया। तो ये केसेस का रिलेशन, ये आपको समझना है कि ट्रिपल तलाक जो बैन बाद में बैन हुआ, हटाया गया,
उनके लिए बेस केसेस ये थे, बेस बना के। तो ये एक लॉयर को करना है, इसके लिए उसका एबिलिटी टू थिंक बहुत जरूरी है, रादर देन रिमेंबर। वो तो उठा के देख सकता है ना, आजकल तो गूगल पे बस सर्च करना है, बुक्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि these skills for a lawyer it is required. Those who are already preparing for law seriously think on this. ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं अभी भी आप ध्यान रखिए, अभी भी कर सकते हैं कि अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं और आप आपके एग्जाम्स देने वाले हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नहीं तो आप एक नॉर्मल डिग्री लेके ही बाहर निकलने वाले हैं, कहीं से भी चले जाओ। Third career option, I'll not take much time on hospitality. Again, we had conducted a seminar on webinar last year. सब पे webinar हुआ था. Now, again, we are restarting with the series. Hospitality, unfortunately, for this career now, आपको लगेगा जो ये बात समझ रहे हैं कि सर ये करियर क्यों बता रहा है, इसको तो देख के डर लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट पैंडेमिक में बेचारा यही सेक्टर हुआ है। बट आप भी जानते हैं कि हार्डली कितना बचा है पैंडेमिक। We should be very optimistic that mid-May or maximum end of the May, we will be मतलब making a Tata bye-bye to this Corona के काल, और hopefully from first week of June, second week of June, we restarting our life, maximum July. That point of time, this sector will see the tremendous boom. Hospitality मतलब हर प्रकार का hospitality हो सकता है. It's a hotel management, restaurant chain, or probably the aviation industry, the tourism and travel industry, entire. In a sense, this particular sector is flourishing post pre-pandemic, pandemic, post pandemic तो भी और अच्छा flourish करेगा. ये pandemic में सबसे ज्यादा हर्ट यही किए हैं. प्री पैंडेमिक अगर आप देखेंगे ये सेक्टर फ्लरिश कर रहा पूरे ग्लोबल अक्रॉस वर्ल्ड. आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आज ये बात पे बिलीव कर रही है कि भाई टूरिज्म बढ़ाया जाए, लोग आया जाए, पैसे आए फॉरेन से. तो जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोग कम्युनिकेट करेंगे, ट्रेवल करेंगे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विल इंप्रूव. तो दिस सेक्टर इज रियली गुड. इस सेक्टर का सबसे बड़ा पॉजिटिव है, एंट्री काफी इजी और टफ नहीं. प्रीवियस दो आप देखेंगे काफी पढ़ाकू टाइप, मैंने बताया आप पहले दो में. तीसरे में उतना पढ़ाकू नहीं होने की जरूरत है. यू नीड टू बी डिसेंट, स्मार्ट, अच्छा होना चाहिए. प्रिपरेशन के बगैर तो क्या नहीं होगा, भूल जाइए कि विदाउट प्रिपरेशन में आपके साथ हम कुछ कर पाएंगे. बट प्रिपरेशन के साथ अगर आप चलते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इज वन ऑफ द गुड करियर्स. ठीक है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है. सो विद द प्रिपरेशन अगर हॉस्पिटैलिटी हम ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत डायनामिक करियर है. बस सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा करियर है, ये प्योरली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. इट्स लाइक आपको पैशन होना चाहिए. ये करियर में पैशन की रिक्वायर, मतलब पैशन तो हर करियर में चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइल पैशन चाहिए. आपको अलग अलग टाइप के क्लाइंट से मतलब आप इंटरेक्ट करना है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, पेशेंस, योर मतलब योर डाउन डाउन टू अर्थ जो एबिलिटी होती है, वो ये सब बहुत बहुत रिक्वायर्ड होता है इस करियर में. इसका भी अपना एक अलग पैशन. आप ट्रेवल करते हैं एविएशन में, आप जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, यू सी वंडरफुल एयर होस्टेसेस, वो आपके सामने मतलब रिप्रेजेंट करके बताती है कि भाई ये द्वार ऐसे खोलो, वो ऐसे करो, वो करो. आपको श्योरली माइंड में आता होगा कि कितना कैसा जॉब, पर वही आपको खाना भी सर्व करती है और वही खाना भी. बट दिस इज एक्चुअली अ पैशन टू समवन. दिस इज अ करियर, इट हैव अनलिमिटेड स्कोप minus this pandemic, is minus this pandemic, unfortunately, but amazing career option. तो इसमें अपन अगर जाएंगे, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं. देखो, आप किचन में जा सकते हो, आप मैनेजमेंट ट्रेनी एज एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, आप इंडस्ट्री बीपीओ केपीओ की इंडस्ट्री शिपिंग में जा सकते हो, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, और कैश कस्टमर, मतलब काफी सारे. और यहाँ पर एज एन एंटरप्रेन्योर बनने के ऑप्शन सबसे ज्यादा है. एंटरप्रेन्योर करके आप सबसे ज्यादा और इजीली यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एज कंपेयर टू बाकी अदर करियर ऑप्शन में से. अगर अपन देखेंगे कहाँ एंटरप्रेन्योर बनने की चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है. आई वुड सजेस्ट
कि this career option is for those people who are really passionate about this industry and should surely think about it. अगर आपको ये पैशन है either on services or kitchen or front desks and number of things, और भी हो सकता है उसमें, किचन में भी मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको करियर ऑप्शन जाना है देन करियर मैनेजमेंट है। इसमें भी हमने वेबिनार किए थे और इसकी भी एक वेबिनार सेपरेट करेंगे। इतने सारे ऑप्शंस, इमेजिन इतने सारे कॉलेज है जिसमें आईआईएचएम और आईएचएम ये दो प्रीमियम ऑप्शंस। आईएचएम इज इंडियन होटल मैनेजमेंट एंड आईआईएचएम इज लाइक इंटरनेशनल इंडियन होटल मैनेजमेंट। दोनों काफी रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। आप उसमें जा सकते हैं और प्रोमिनेंटली उस पे अपने एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और अच्छी बात, जैसे मैंने बोला ना, इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, आप आसानी से एंटर कर सकते हैं, बट ये करियर पैशन रिक्वायर्ड है। तो अगर हमको यहाँ देखा जाए तो ये बेसिक स्किल्स की जरूरत है यहाँ पे, जस्ट लाइक अ मैनेजमेंट, लाइक अ मैनेजमेंट ओनली, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये स्किल्स तो रिक्वायर्ड रहेंगी जो आपको। इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया कि जो मेजर स्किल है वो है पैशन टुवर्ड्स दिस करियर, ठीक है। Now finally we are moving towards the end of our session, जिसमें मैं आखिरी में आपको how the preparation need to done by these things, और उसमें हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, we'll discuss on that and prominently आप उसमें से काफी कुछ चीजें निकाल सकते हैं भाई। तो 2021 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे के करियर ऑप्शंस में जाना चाह रहे हैं, सो एप्टीट्यूड, रीडिंग, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड आपका फाइनल जो प्रिपरेशन है ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए हमने ये 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी हमेशा से प्लान करके रखा है। और इसमें आपको ये जो करियर्स हैं के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन का जो लेवल है उसी तरीके से किया जाएगा, ताकि ऑन अ ब्रॉडर स्केल आपका प्रिपरेशन मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट हो सके। तो देखिए, एप्टीट्यूड एक कॉमन स्किल्स है, ये तो सबको चाहिए, तो ये करवाना ही करवाना है। रीडिंग स्किल्स पे हमारे यहाँ काफी इम्फेसाइज होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स यू आर ज्वाइनिंग। इफ यू आर ज्वाइनिंग अ होटल मैनेजमेंट कोर्स और अ नॉर्मल मैनेजमेंट कोर्स, स्टिल आई थिंक यू नीड दिस स्किल्स, तो हम कंफर्म है आपको ये करवाएंगे। देन नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स के रेगुलर सेशंस हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, डिबेट्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपके पास टेस्ट है, पर्सनालिटी एनालिसिस के साथ साथ टॉपिक टेस्ट, क्विज, केस स्टडीज, सब आपको करवा के दिया जाता है। एंड फाइनली क्रैश कोर्स एंड वर्कशॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक्स एंड एनालिसिस। अभी जो 2021 के लिए है, ऑल्दो अनसर्टेन पीरियड में ले रहे हैं हम लोग और एग्जाम्स पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते चले जाते हैं, लास्ट ईयर भी यही हुआ, तो भी हम लोग ये बीच बीच में बार बार ये अपनी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं, ताकि स्टूडेंट्स भी बहुत मोटिवेटेड रहे उसको लेके भाई। This is 5 point strategy preparation that what generally we do. Look at this today. Today is what date? 25th April. So this is the daily dossier हम लोग बोलते हैं, what to read in a newspaper. तो डेली डोजियर मतलब ये हो गया कि डेली बेसिस पे आपको ये ऐसा एक इमेज या ऐसा एक इमेज आपको सर्कुलेट होता है ग्रुप में, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में, जिसमें वी जनरली डिस्कस द वी शेयर द न्यूज what to read in the Hindu and the Indian Express. Look at the first news itself. ये सबसे बड़ा न्यूज जो भी प्रॉब्लम में चालू है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस को खतरा कर रहा है। We actually need to vaccinate our country. 140 के लिए हमको वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन के लिए बनाने का कैपेसिटी है, बट उसका रॉ मटेरियल नहीं। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो यूएस को ही वो उसके पास वो रॉ मटेरियल, यूएस ने उसको ब्लॉक करके रखा है। वो ब्लॉक करके रखा है तो उसको लेके प्रॉब्लम है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। तो ये पूरा हम लोग आपको देते हैं। अब इतने बड़े न्यूज़पेपर में अगर आप इतनी चीजें रहेंगी तो इजीली यू कैन हैव, यू इजीली आप आराम से देख सकते हैं कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपका मतलब आइडिया भी क्लियर रहेगा कि भाई ये न्यूज़ेस हमको पढ़ते हुए चलना है। इसमें कई बार कुछ न्यूज़ेस अगर रह जाती हैं तो स्टूडेंट हमको बताते हैं कि सर ये न्यूज़ आप ऐड कर लीजिए, या प्रोबेबली ये न्यूज़ नहीं होना चाहिए था यहाँ पर।
जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो वी यूज टू कंडक्ट ऑफलाइन करंट अफेयर सेशन, बट नाउ वी आर कंडक्टिंग सेशंस ऑनलाइन ओनली. But I'm assuring that कि by as soon as the pandemic gets over, we get the permission, we'll straight away start with offline because उसका replication कुछ भी नहीं है. These are our courses: 2 year course, 1 year course and 45 days course. अगर आप 12th में हैं तो आपका 45 डेज कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप 12th में पास हो रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, और अगर आप 11th पास करके 12th में आए हैं तो 1 year प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है. और अगर आप 10th पास करके 11th में हैं तो 2 year फाउंडेशन कोर्स तो बहुत क्रूशल है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज, यू कैन टॉक टू श्वेता मैम, इन डिटेल शी विल लाइक गाइड यू. दीज आर अवर फैकल्टी मेंबर्स. इन डिटेल आपको मिलेगा सुनने में. ये हमारे लीगल के फैकल्टीज हैं. अदिति मैम, शी टेक्स केयर ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. रौनक मैम, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल टर्मिनोलॉजी. आदित्य सर जो है वो एनएलएस बैंगलोर. अनुषा मैम जो है शी टेक्स केयर फॉर दी मैनेजमेंट पार्ट. अभी लास्ट ईयर उन्होंने वो सेमिनार लिया था. एंड हर सर इज टेकिंग केयर ऑफ लीगल एप्टीट्यूड सेशंस. ठीक है, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बोले, ये कहावत हमारे पुराने लोग बोलते रहे हैं, जब जागे तब सवेरा. आज आपको पता चला है, स्टार्ट टुडे. एज सून एज यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, उतना आपके लिए इजी होगा करियर में. ठीक है, जितना लेट करेंगे उतना डिफिकल्ट आपको होता चला जाएगा, क्योंकि करियर ऑप्शंस मजाक नहीं है. आप मान के चलिए कि इट्स नॉट योर 11th-12th एग्जाम. it is something which really need your dedication, devotion and complete efforts आपको देना पड़ेगा. These are some results for CLAT के हमारे और BBA के एग्जाम्स के लिए. उन्होंने जो बच्चे लास्ट ईयर अनाउंस 10 कैंडिडेट्स got into NLUs. One is for NLU मुंबई. एंड ध्यान रखिए, ये सब हमारे स्टूडेंट्स जो है हमारी क्लासरूम कैंडिडेट्स हैं. We don't show national results for a local level. This is our classroom students जिनको हमने पढ़ाया है. कुछ कोर्सेज, कई बच्चे इसमें से मैक्सिमम 2 years वाले बच्चे हैं, कुछ 1 year वाले भी हैं, 1-2 बच्चे क्रैश कोर्स के भी हैं. तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट जब ज्वाइन करते हैं तो उनको फुल्ली वो मिलता है. इसमें से कई सारे बच्चे मैंने इस इमेज में अभी ऐड नहीं है, तो या तो प्रिपरेशन में जो 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 बच्चे बाद में जिसमें ज्वाइन हुए, जैसे 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां पर हमको एनएलएस बेंगलुरु, सॉरी आईएलएस पुणे और जीएलसी मुंबई में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो यहाँ एडेड नहीं है. कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस लिए हैं. दीज आर द कोर्स प्रोग्राम्स that we have: Vikalp Academy, Law, Management, Hotel Management, Mass Communication. These are all primarily programs are available. Okay. Yes, now I'm open for question. You have any query, any question, you can ask me, and don't be shy on asking anything. Please try. मैं अगर आंसर कर पाया तो surely I'll answer it. हाँ, Riya, course fees and the course detail will be discussed by Shweta ma'am beta. That fees thing I think need to be discussed when you will completely आपको एक कोर्स का मॉड्यूल मिल जाएगा. Batches are starting from this week. ठीक है, Saturday onwards, if for weekend. और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं जो 21 में दे रहे हैं, उनके लिए कल से हम लोग चैंपियन बैच शुरू कर रहे हैं अगेन. Champion batch is basically emphasizing on the latest pattern of CLAT and then followed by the other programs. यही मिलेगा बेटा आपको. आईपीएम वेबिनार भी आपको मिलेगा. आईपीएम वेबिनार के लिए भी वो आगे के वीक्स में प्लान होंगे. जैसे जैसे अगर आप करते जाएंगे आगे के वीक्स में वो प्लान होते चले जाएंगे. आप बस नंबर सेव करके रखिए और हमारे को फॉलो करते चलिए ताकि आपको ये करियर ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे. और कोई और क्वेश्चन है किसी को? यस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. Yes, Riya, I am actually a director over here. I took care of current affair section. You can see current affair का हमारे वीडियो में विकल्प एजुकेशन के YouTube चैनल में जाके आप वहां पर
मेरा वेडनेसडे का सेशन देख सकते हैं जिसमें मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर लिया था। तो मैं करंट अफेयर्स लेता हूँ एंड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग इज माय सेक्शन, वो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, so that's it, I think. Thank you so much for everyone for participation. I'm sure we have tried and communicated things to you जो आपको रिक्वायर्ड था और आपने इससे लर्न किया होगा, कुछ यहाँ से लेके आप जा रहे होंगे, आई एम श्योर। एंड इस बात को इम्प्लीमेंट भी करिए बेटा, सुनने से अकेला काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट इज यू शुड फॉलो एंड इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।